Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. Will nobody come today? Ma'am, I don't know. Everybody is celebrating festivals. Yes, ma'am. मैम आज शाम से ही तो है. हाँ बेटा आज से ही है इसीलिए some people have puja in daytime also at their place. Yes. तो मैम आज छुट्टी कर दीजिए. छुट्टी है बच्चे तो अपनी मनमर्जी के मालिक हैं मैं तो अपना वीडियो रिकॉर्ड कर ही रही हूँ if you want to go you can see the recording it's entirely your choice अब मैं क्या करूँ आप अकेले हो ओके मैम मैं फिर रिकॉर्डिंग ही देख लूँगा. आई एम रिकॉर्डिंग दिस इसी को कंप्लीट करूंगी जो कल कराया था ना. यस I'll मैम. be complete ठीक है it's entirely your choice पोस्ट नहीं करूंगी आज मैं. ओके मैम. ओके डियर बाय बाय. मैम. व्हाट? Nothing I said. I did not say anything. ओह. You said bye तो I said okay bye. That's all I said. फिर जाना है कि नहीं जाना है? आपकी मर्जी है बेटा मैं तो रिकॉर्ड कर ही रही हूँ. If you want to leave you are alone you can leave. I am recording the class आप चाहे तो बाद में देख लेना. ओके मैम. No issues. Okay बेटा. Step 1 activation of nucleotides. In the first step, we had already done how nucleotides open. All the monophosphates are converted to triphosphates. We know we have 4 nitrogenous bases. We did this yesterday, ATCG. All of the monophosphates will be converted into triphosphates. In the second stage, we already did the helicase will open. The helix opens. Okay. We know the DNA is a double coiled structure, a double helical structure. So in the second case, the helix will open. The enzyme which will be responsible or the enzyme which is involved in opening the helix, I explained yesterday it was helicase. So whenever this question comes in exams, specify the name of enzymes, write the name of enzymes in bold letters or underline them to highlight these enzymes. So please note down the first step somewhere. The first is activation of enzymes. Sorry, activation of nucleotides. In activation of nucleotides, you write that all of them are in inactive form. Okay, they are all monophosphates, AMP, adenine monophosphate, thymine monophosphate, cytosine monophosphate, and guanine monophosphate. All of them will be converted into triphosphates. So ATPs, that is what? ATP, GMP, and CMP. Please do this accordingly. And then finally, the second step, please note down, that is opening of the helix. Write down that after the helix opens, the enzyme helicase is responsible.
So you need to note down these 2 steps, please. I hope you remember the steps now. Very quickly write down activation of nucleotides number 1 and opening of helix. It is shared on your screen also. Do not forget to write the name of the enzymes which are involved in each of these steps. Remember the correct sequence also, children. Monophosphates into triphosphates, inactive nucleotides into active nucleotides. That is why the first step is known as activation of nucleotides. Second step, opening of helix. So you're going to mention that also. It's opening of helix. Very quickly. The helix is going to open up. The double-stranded DNA is now going to become a single-stranded DNA with the help of the enzyme helicase. Abhirup had come. You did not come, Ariba, that time? Ma'am, Hmm? ma'am, Abhirup joined. There was nobody. So he told me, ma'am, may I leave? I said, I'm doing the recording of the class. If you want, you can leave. So he left. He was waiting for about 10 minutes. He was the Ma'am. only child. ma'am, He told tell me, him he if told he me wants to leave. now. 55 he left, na? 45, the class starts 55. He said, ma'am, I'm leaving. Can I leave? No, may I leave? Because you will be recording the class. I'll see it later. I said, okay, bhaiya. If you're alone, you leave. Same thing I'm telling you also. I'm recording the class. Same process I'm doing. If you want to be in the class, you can be in the class. If you also want to leave, you can also leave. Because I'm too doing my class. I'll be doing the class. I'll be recording my class. So today there is no compulsion. I'm not forcing anyone today. I'm simply telling you, Bachi, I will be recording the class, the entire topic. So it's entirely your choice. If you want, you can continue to be in the class. If you want, you can leave. Okay? You can take your decision yourself. Same thing I told Abhinav also. हाँ जी मैम बच्चे. अभी कोई काम नहीं है तो मैं ज्वाइन ही कर लेती हूँ. हाँ, because मैं तो अपनी क्लास कंटिन्यू कर ही रही हूँ. मैं तो as it is otherwise भी रिकॉर्डिंग करके डालूंगी. चलो फर्स्ट 2 स्टेप्स की हेडिंग पढ़ो फटाफट. मैंने शुरू से सिर्फ हेडिंग्स डाल दी हैं. हेलिक्स I just written the headings of the first 2 steps जो मैं करा चुकी हूँ. आप बस फर्स्ट 2 स्टेप्स एक बार रिकॉल करो, डिस्कस कर लेते हैं. मैम In this new PDF, I have not written the details of the first 2 steps. और आप बस फर्स्ट 2 स्टेप्स की हेडिंग पढ़ लो. फर्स्ट इज एक्ट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, सेकंड नहीं इज बस रिकॉल कर लो. हेलिकेज. बस रिकॉल कर लो मन में. रिवाइज करते हैं बस.
So what is the first step in DNA replication? First is activation of nucleotides. When we say inactive nucleotides, they are in which form? Monophosphate. Monophosphates. And then they get activated, they convert into which forms? Triphosphate. Triphosphates. This is our first step. Which enzyme is involved? Phosphorylase. Yes, phosphorylase. Then we move on to the second step. We had already done a bit detail about this. What is the second heading, second step? Opening of DNA helix. Opening of the DNA helix. So after this step, your double-stranded DNA converts into a single strand, two separate strands of DNA. Which enzyme is involved? Helicase. Helicase. Topoisomerase. And in no, second step you take it this, and third step you could specify it as 3 steps. Releasing tension which exists between the two strands after separation. Then the other strand is going to come. See, but I make it in 3 steps. The second step should have 3 sub-steps. A is opening of the helix. Who is responsible? Helicase. Then B, releasing tension from the separated strands. Name the enzyme. Topoisomerase. Yes, topoisomerase. And the C step would be stabilizing the separated strands. Enzyme involved? What? Which is the enzyme involved in the C step? Stabilizing. Single strand stabilizing enzyme. Yes, single strand stabilizing hormone. So there are 3 sub-steps, and each sub-step has its own this enzymes. Helicase, topoisomerase, and stabilizing enzyme. So we're done with the second step also. We had done yesterday, so we are quite clear with it. Okay, let's move on here. See, topoisomerase, single strand stabilizing proteins. Now this is how your linear DNA will look like after opening. Fine. So the next step will be, see this is your step 3, primer formation. Okay, first 2 steps are done. Remember, in the second step we have 3 sub steps, and now come to step 3. What is the step 3? It is primer formation. Now see beta, what is primer? It is a small segment of RNA nucleotide. It is a small segment of what? See, whenever you talk about primer, you have to remember 2 things: why a primer is needed and where it is formed. In the third step, when you're writing about the formation of primer, specify 2 things: why do we need a primer and where is the primer formed. चलिए पहले तो बताते हैं what is a primer. I told you yesterday, it's a small segment of RNA nucleotides. See over here, this is a small segment. This is your RNA primer. This is 3' OH group, 5' phosphate group. Now, you have on one hand, you have which free group? OH group. And the other side, you have a free phosphate group. We also did that day that new bonds are always formed at the functional group वाला part. तो इसका मतलब यहाँ पे जो भी bonding होगा, binding होगा, वो इस वाले point पे होगा बेटा. See this now. This was your primer. This is your primer. Sorry, this is your nucleotide sequence, and this is your primer. Now this primer will come and bind at the 3' end. कल भी हमने पढ़ा था जब phosphodiester bond बनेगा, तो new strand and old strand के बीच में बनेगा. न्यू स्ट्रैंड, ये जो न्यू वाला प्राइमर पार्ट है इसका तो 5' ऐड करेगा, एंड ओल्ड वाला जो स्ट्रैंड है इसके कौन से एंड पे ऐड करेगा? 3' बिकॉज OH ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है, एंड न्यू चीज हमेशा इसी पे ऐड होती है 3' वाले पे जहाँ 5' ग्रुप है. सो बेटा ये ओल्ड स्ट्रैंड है आपका, दिस 3, ये वाले जो प्राइमर है ये DNA न्यूक्लियोटाइड, RNA न्यूक्लियोटाइड कुछ भी हो सकता है आपका प्राइमर, तो यहाँ पे आके ऐड कर जाएगा. सो आपका बॉन्ड बन जाएगा फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड. So remember this, phosphodiester bond is formed between the 5' end of the primer and the 3' end of the old strand. अब आगे चलते हैं. Primer कहाँ पे attach हो रहा है देखो. This is it. These are the 2 strands after separating. Now we'll study where the primer will come. If we talk about this parent strand, 3' to 5', we've got 2 parent strands, no? ये वाला 3' to 5' parent strand बोलते हैं इसको.
इसको बोलेंगे 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अब देखो यहाँ पे प्राइमर अटैच होगा, इसका ये 3 प्राइम एंड है, सो ऑब्वियसली ये हम पहले पढ़ ही चुके हैं, यहाँ पे ये वाले स्टेप में समझा चुके हैं हम लोग कि आरएनए जो प्राइमर यहाँ पे अटैच, दिस इज द वे हाउ इट विल अटैच, बिकॉज न्यू थिंग्स आर ऑलवेज एडेड टू दी 3 प्राइम एंड। तो ये इसका पेरेंट स्ट्रैंड का 3 प्राइम, तो यहाँ पे प्राइमर आ गया, बट ये प्राइमर का 3 प्राइम इधर आ रहा है बेटा, यानी कि अब अगली चीज जो ऐड होगी वो इस पॉइंट पे होगी। सो ये अगला न्यूक्लियोटाइड आ गया। अब अगला न्यूक्लियोटाइड जो आया इसका ऊपर वाला 5 प्राइम होएगा, ये 3 प्राइम होएगा, 5 प्राइम 3 प्राइम, यानी कि एडिशन हमेशा किस तरफ हो रहा है, 3 प्राइम वाले एंड पे चलता जाएगा। दिस इज अबाउट द फर्स्ट पेरेंट स्ट्रैंड, दैट इज 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ये जरूर याद रखना है कि ये यहाँ पे ये कौन सा पेरेंट स्ट्रैंड है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। अब हम सेम चीज यहाँ लगा के देखते हैं, ठीक है। क्या हमने प्राइमर यहाँ पे लगा दिया, तो क्या इस वाले पेरेंट स्ट्रैंड में भी हम प्राइमर यहाँ लगा सकते हैं, ये देखना है। इसका बेटा 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है, देखो ये पेरेंट स्ट्रैंड की पोलराइजेशन कैसी है। इफ यू सी दिस इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम, बट यहाँ पे प्राइमर ऐड नहीं हो सकता, क्यों नहीं ऐड हो सकता? मैम क्योंकि वो सिर्फ फॉस्फेट ग्रुप वाले पे अटैच होना था। एग्जैक्टली यहाँ पे हमारा 5 प्राइम एंड है, एंड हमें पता है कि कोई भी नई चीज हमेशा 3 प्राइम एंड पे ऐड होती है, तो यहाँ पे तो प्राइमर नॉट पॉसिबल, सी इट इज रिटन नॉट पॉसिबल। अब अगर हम यहाँ पे ऐसे लगा दें, पहली बात तो नहीं लगेगा ये। एक तरीका हो सकता है, इसका 3 प्राइम देखो यहाँ पे है ना, तो न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ पे तो ऐड हो सकते हैं ऊपर की तरफ, क्योंकि ये 3 प्राइम एंड इसका ये ऊपर की तरफ आ रहा है, तो इधर 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 एरो दिख रही है, एरो इधर हमारा न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस बढ़ सकता है, बट यहाँ बढ़ने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो स्ट्रैंड है डीएनए का पेरेंट स्ट्रैंड वो तो है नहीं, तो डबल स्ट्रैंड डीएनए तो फिर भी नहीं बनेगा। सिर्फ एक ही न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस यहाँ तो बढ़ सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं बढ़ सकता, बेटा बढ़ जाएगा, बिकॉज इसका 3 प्राइम एंड यहाँ पे अगर आप देखो मैंने एरो बना रखी है, दैट मीन्स यहाँ 3 प्राइम में ऐड होके एक ऊपर सीक्वेंस बन जाएगा, बट उसका फायदा नहीं है क्योंकि यहाँ पे तो कोई डीएनए है ही नहीं है। सो हम लोग क्या करेंगे, हमें इस तरह से वैसे यहाँ, होगा तो हाँ जी, ये स्ट्रैंड तो बहुत बड़ा होता है, तो होगा तो इतना तो। नहीं ऊपर नहीं, इतना ऊपर नहीं होता है ना बेटा, जब ये कट हुआ तो ऊपर के पार्ट से कट हुआ, सेपरेट हो गया, तो इसके ऊपर स्ट्रैंड नहीं है, ऊपर ये डीएनए स्ट्रैंड है ही नहीं। हेलिक्स जो कटा तो ये ऊपर से ही कटा है, ये ऊपर वाला ब्रॉड पार्ट ही है, ये बहुत होगा तो जरा सा इतना स्ट्रैंड बहुत लंबा होता है, लेकिन कटिंग जो है वो ऊपर से ही होती है, जब ये खुलता है फोक तो ऊपर से ही खुलता है, हार्डली बहुत थोड़ा होगा, 2-4 न्यूक्लियोटाइड बेसेस ऐड हो जाएंगे बस। सो यहाँ से हमारे को कोई फायदा नहीं हो रहा है, सो हम लोगों को हमें पता है कि हमारा ये प्राइमर पोजीशन रॉन्ग है, यहाँ से हमें कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। इस पेरेंट स्ट्रैंड में तो प्राइमर यहाँ लग जाएगा 3 प्राइम 5 प्राइम में, बट इसमें नहीं लगेगा। तो चलिए यहाँ देखते हैं, यहाँ से हम मान के चलते हैं, ये देखो ये ब्रेक कर जाएगा डीएनए स्ट्रैंड यहाँ पे। आप अगर आपको याद होगा तो यहाँ पे 5 प्राइम था, तो अगर ये यहाँ पे कट होगा इस पार्ट पे जहाँ ये बेंड हो रहा है, तो इसका ये 3 प्राइम हो जाएगा। सी दिस आरएनए प्राइमर यहाँ पे देखो ब्रेक कर गया ये स्ट्रैंड हमारा, दिस पार्ट ब्रेक्स, 2 स्ट्रैंड बन रहे हैं एक तरह से। ये 5 प्राइम था तो इसका ये 3 प्राइम हो गया। अब यहाँ पे क्योंकि 3 प्राइम आ गया, अब आपका प्राइमर बाइंड कर सकता है, क्योंकि प्राइमर हमेशा कहाँ बनेगा, इन फ्रंट ऑफ द थर्ड एंड, दैट इज अ 3 प्राइम एंड। ये जरूर याद रखना है, द डीएनए ऑलवेज ग्रोज फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम। इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, इसमें याद रखना इट्स 5 प्राइम टू 3 प्राइम, याद रखना डीएनए ग्रोज फ्रॉम इट्स 5 प्राइम टू 3 प्राइम, इसमें कंफ्यूजन नहीं। खुद के 5 प्राइम से। ये अब हम आगे चल रहे हैं। ऑल्सो फॉर आरएनए, क्योंकि थर्ड प्राइम पे आपको पता है कि OH ग्रुप होता है, तो नई बाइंडिंग हमेशा किस पे होगी, थर्ड ग्रुप पे ही होगी हमारी। ये देखिए अब आपका प्राइमर अटैचमेंट हो गया, 3 प्राइम 5 प्राइम पेरेंट स्ट्रैंड पे तो प्राइमर यहाँ लग गया, एंड 5 प्राइम वाला जो स्ट्रैंड था वो यहाँ से कट हो गया, इफ यू कैन सी दिस डॉटेड लाइन, और प्राइमर यहाँ लग गया। ओके ये देखिए हमारे 3 स्टेप्स हो ही चुके हैं अब तक। एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स हो गया, ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स हो गया जिसमें 3 सब स्टेप्स है, एंड थर्ड आपका प्राइमर फॉर्मेशन हो गया। 1 मार्क का क्वेश्चन, व्हाई अ प्राइमर इज नीडेड, व्हाई डू वी ऐड आरएनए प्राइमर? 2 रीजंस है बेटा,
पहले तो RNA DNA बॉन्डिंग टेक्स लेस टाइम, ठीक है। सो जब भी कोई नया DNA आएगा यहाँ पे बाइंड करने के लिए, ये यहाँ से आके आप दूसरा न्यूक्लियोटाइड्स जब आएंगे तो वो RNA से जल्दी बाइंड करेंगे कंपेयर टू DNA। सो प्राइमर हमेशा प्रेफर्ड होता है कि हम RNA लेने का तो हम DNA भी ले सकते हैं, DNA का स्मॉल स्ट्रैंड, बट DNA स्ट्रैंड में थोड़ा टाइम लगता है। DNA DNA बॉन्डिंग टेक्स मोर टाइम, RNA DNA बॉन्डिंग जल्दी हो जाती है। ऐसा क्यों है क्या बेटा? मैम, ऐसा क्यों है? बेटा ये ऑलरेडी सिंगल स्ट्रैंडेड होता है ना, ये ऑलरेडी सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, तो इसकी अडेप्टेबिलिटी ज्यादा कंपैरेटिवली क्विकर होती है। वो डबल स्ट्रैंड से सिंगल स्ट्रैंड होता है, फिर वो दोबारा अगर डबल स्ट्रैंड बनेगा तो कंपैरेटिवली बॉन्ड फॉर्मेशन में टाइम लगता है। ये ऑलरेडी सिंगल स्ट्रैंडेड है, तो इसकी अडेप्टेबिलिटी रहती है कि जल्दी से डबल स्ट्रैंड बन के स्टेबल हो जाए, ये ज्यादा जल्दी अडेप्ट करता है। अब ये जो हमारा प्राइमर था, ये पहला रीजन हमें समझ में आ गया कि ये बॉन्ड जल्दी बनेगा। देखो ये स्ट्रैंड किसका है, ये DNA का स्ट्रैंड है और प्राइमर हमारा RNA का है, तो बॉन्डिंग होगी इन दोनों के बीच में, बिटवीन RNA एंड DNA, इसके और इसके बीच में, तो ये जल्दी होगी। तो व्हाई RNA प्राइमर इज नीडेड? फर्स्ट, RNA DNA बॉन्डिंग टेक्स लेस टाइम, सो DNA न्यूक्लियोटाइड। और दूसरा देखो, जो भी न्यू न्यूक्लियोटाइड्स बाइंड करेंगे, देखो अब जब दो न्यूक्लियोटाइड्स आएंगे तो जल्दी जल्दी न्यूक्लियोटाइड्स आएंगे, दो जगह मिल जाएगी न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करने में। एक तो वो इससे बाइंड कर सकते हैं, द न्यू न्यूक्लियोटाइड्स कैन कम एट 2 प्लेसेस, एक तो इस DNA के साथ और दूसरा यहाँ पे RNA के साथ। तो बॉन्ड्स बहुत जल्दी जल्दी बनेंगे, बहुत जल्दी जल्दी न्यूक्लियोटाइड्स अट्रैक्ट हो जाएंगे। ओके, प्राइमर हमें पहले भी एक एग्जांपल दिया था, जब हम वॉल पे पेंट करते हैं तो हम लोग पहले क्या करते हैं, उस पे प्राइमर लगाते हैं। प्राइमर बीच में आता है बेटा, पहले वॉल फिर प्राइमर फिर पेंट। प्राइमर हमेशा पेंट से पहले लगाया जाता है क्योंकि वो बाइंडिंग का काम करता है बिटवीन द वॉल एंड द पेंट। सेम वर्क ये करेगा बेटा, ये प्राइमर, ये क्या बाइंड करेगा, न्यू वाले जो न्यूक्लियोटाइड्स आ रहे हैं और जो ओल्ड आपका DNA, इन दोनों को बाइंड करने का काम ये करेगा। एग्जैक्टली द सेम जो पेंट में प्राइमर करता है। मैम, न्यू जो वाले मैंने आकार से रहे हैं। क्या बेटा? मैम, न्यू वाले न्यूक्लियोटाइड्स आकार से रहे हैं। न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस तो बेटा हमारे पास होते हैं ना बॉडी के अंदर, वी ऑलरेडी हैव न्यूक्लियोटाइड, एक्टिवेशन हो चुका है न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस का, वो होता रहता है। इनएक्टिव न्यूक्लियोटाइड्स बॉडी में है, इनएक्टिवेट न्यूक्लियोटाइड्स एक्टिव होते रहते हैं साइड बाय साइड, एंड देन DNA का डबल स्ट्रैंड फॉर्मेशन कीप्स कंटिन्यूइंग। एंड व्हेन द बेबी इज बीइंग बोर्न, तो ये प्रोसेस एंटायर इनएक्टिव न्यूक्लियोटाइड्स टू एक्टिव न्यूक्लियोटाइड्स एंड एक्टिव न्यूक्लियोटाइड्स टू फॉर्मेशन ऑफ डबल स्ट्रैंडेड DNA, रेप्लिकेशन। वॉल एंड पेंट का एग्जाम्पल हमने करा था, 3 स्टेप हो गए बेटा, थर्ड स्टेप ज्यादा डिटेल का है। फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा, एक्टिवेशन ऑफ, न्यूक्लियोटाइड्स। सेकंड आपका ओपनिंग ऑफ DNA हेलिक्स, और थर्ड आपका हो गया प्राइमर फॉर्मेशन। एक बार थर्ड स्टेप की स्लाइड फटाफट देख लो, फिर हम फोर्थ एंड फिफ्थ स्टेप करते हैं, प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से देखो डाइएस्टर बॉन्ड कैसे बनते हैं, प्राइमर होता क्या है, यहाँ से देखो बेटा, फिर मैं एक दो बार नीचे स्क्रॉल कर दूं बस। कैसी कैसी न्यूज है बताओ। जस्ट नाउ माय सन टोल्ड मी, न्यूज़पेपर में निकला है कि एयरफोर्स स्टेशन है सन यस सिटी के मैम। पास, हाँ उसमें व्हाट डू यू कॉल इन हिंदी, तेंदुआ has हाँ, entered yesterday morning 8 o'clock. Entire day it is in this colony and the अंदर एयरफोर्स स्टेशन में, एंड हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से पकड़ ही नहीं पा रहा है। अभी भी नहीं। नहीं अभी भी नहीं पकड़ पाया। कल सुबह 8 बजे he was spotted
एंड उसके बाद से वो लोग रात तक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाज देयर इन द एयरफोर्स कैंपस, और फिर रात में उन्होंने वो पिंजरे में एक बकरी लगा के दे वेंट अवे कि वो आएगा तो फंस जाएगा। इमेजिन दोस पीपल हु आर लिविंग इनसाइड द कैंपस, कहाँ छुपा है कहाँ नहीं है, उनके तो हो गया, फेस्टिवल हो गया। नोबडी वुड लेट देयर चिल्ड्रन गो आउट और देमसेल्व्स मूव आउट। ये हमेशा घूमते रहता है, इट्स इन द न्यूज़पेपर ऑलमोस्ट एवरी डे। मैम उधर की साइड कहीं पे स्पॉट, पीलीभीत में बहुत होता है, इधर फतेहगंज साइड पे कोई रबर फैक्ट्री है, उसका तो बहुत ही आता है न्यूज़पेपर में कि इट्स ऑलवेज देयर इन रबर फैक्ट्री, और वो हमेशा कैमरा में कैप्चर हो जाता है, बट दे आर नेवर एबल टू कैच। बट दिस इज सो क्लोज टू आवर हाउस ना। This is the last part. Then let's proceed. Yes, ma'am. Now we are moving on to the fourth step. The heading would be DNA replication. The entire setup is already ready now. अब main process start हो जाएगा, what we call as DNA replication. So just learn the headings. अगर आपको headings याद होंगी आप easily कर लोगे. What is the fourth step? Ma'am, first, No, sorry, fourth step. Sorry. fourth. Fourth हाँ, is DNA DNA replication. replication. We're going to start with DNA replication over here. आपका ये पेरेंट स्टैंड है, अब आपको वैसे ही समझ में आ गया होगा। दिस इज योर आरएनए प्राइमर ओवर हियर। प्राइमर ऑलवेज बाइंड्स एट द 3' एंड। ये आपका प्राइमर ये रहा। अब ये देखिए बेटा, ये आपके क्या है, डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स, दे आर बीइंग एडेड। अब इसमें तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बन रहा है। ओके, इफ यू सी कौन सा बॉन्ड बन रहा है आपका, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। यस, एंड इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बन रहा है इधर, इन दोनों के बीच में, डीएनए न्यूक्लियोटाइड एंड डीएनए स्ट्रैंड के बीच में, दोनों डीएनए हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो यहाँ पे हमारे पास 2 बॉन्ड्स आ गए। ओके, एंड बेसिकली एडिशन जब की हम बात करते हैं तो अगेन वी नीड टू लर्न द नेम ऑफ द एंजाइम। इट इज डीएनए पॉलीमरेज। व्हाट इज द नेम ऑफ द एंजाइम? DNA polymerase. Yes, DNA polymerase will help in adding of these DNA nucleotides to this old strand of DNA. Primer already attached था बेटा, ये प्राइमर का 3' एंड था, तो न्यू न्यूक्लियोटाइड्स हमेशा इस वाले एंड पे ऐड होंगे। ये डीएनए न्यूक्लियोटाइड एक एक करके ऐड हो रहे हैं। देखो एरो बनाई है, ये जरूर याद रखना है कि एरो क्यों बनाई गई है यहाँ पे। आपका पेरेंट स्ट्रैंड कौन सा था, 3' टू 5', बट जो न्यू स्ट्रैंड बन रहा है वो यहाँ से बन रहा है। किधर जा रहा है ये, 5' से स्टार्ट हो रहा है, और अगर आप लास्ट में देखो मैंने क्या बनाया है, 3'। ये चीज हमेशा याद रखनी है। पेरेंट स्ट्रैंड अगर 3', 5' है तो न्यू स्ट्रैंड 5' टू 3' आएगा। इसमें कई बार थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे अगर 1 मार्क का क्वेश्चन आता है तो। दिस वाज योर पेरेंट स्ट्रैंड 3', 5'। ये डीएनए न्यूक्लियोटाइड 2 तरह के बॉन्ड्स बने, प्राइमर एंड फर्स्ट डीएनए न्यूक्लियोटाइड जो आया उधर तो बन गया आपका फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, एंड डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स, न्यू डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स एंड पेरेंट डीएनए के बीच में आपके हाइड्रोजन बॉन्ड्स हो गए। अगर आप इसको देखो तो जो नया स्ट्रैंड बन रहा है, इट इज गोइंग टुवर्ड्स विच प्राइम, इट इज गोइंग फ्रॉम 5' टू 3'। ये वाला तो हमारा ये वाला स्ट्रैंड समझ में आ गया हमें, ये वाला जो था 3' टू 5'। अब हम इस वाले पे चलते हैं। हाँ जी मैम यही कह रहे थे जो साइड में बना हुआ है। अब हमारा दूसरा वाला स्ट्रैंड, दोनों को अलग अलग समझ लेते हैं क्योंकि इनका फॉर्मेशन थोड़ा अलग होता है बेटा। ये जो न्यू वाला स्ट्रैंड है अब इस वाले को ले लेते हैं। हमने प्राइमर यहाँ लगाया था, इजंट इट। अब आपका ये प्राइमर यहाँ पे कट हो गया था, ठीक। अब नेक्स्ट स्टेप में ओपन्स मोर। आपका जब इधर रेप्लिकेशन हो गया शुरू, इधर वाला जो पार्ट है, तो ये थोड़ा और ब्रॉडन अप ओपन करेगा, थोड़ा और ओपन करेगा ऊपर की तरफ।
अब हमारा ये पोजीशन आई, देखो बेटा इधर वाला तो शायद आपको पूरा क्लियर है। इस स्टेप में हमने क्या करा, बस ये याद रखना है कि जब उधर प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा तो दिस ओपन्स मोर। अगर आप पुराना वाला फोक देखो, ये वाला, तो ये इतना खुला हुआ है। सेकेंड स्टेप जो हमने बनाया है, हमने ये स्पेसिफाई करा है ब्रैकेट में कि अब स्ट्रैंड थोड़ा ज्यादा खुल गया, देखिए कितना ब्रॉड खोल दिया हमने, ओपन्स मोर। 5 यस प्राइम 3 मैम। प्राइम एंड आपको समझ में आ ही गया था, ये वाला बिल्कुल क्लियर है। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स बन गए थे, हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन गए थे, न्यूक्लियोटाइड से कीप ऑन एडिंग, एरो दिखा रहा है कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम जा रहा है नया स्ट्रैंड जो है। अब बेटा इस वाले को समझो, थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे है, ओपन करने के बाद जैसे हमने शुरू में पढ़ा था कि बहुत थोड़ा सा पार्ट ऊपर होता है, तो इतना सा पार्ट तो न्यूक्लियोटाइड का बन जाएगा, बट इट टर्मिनेट्स हियर, यहाँ जाके ये प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा, बिकॉज हमारा पेरेंट डीएनए ऊपर और है ही नहीं। फिर यहाँ पे जो हमारा ये वाला प्राइमर है, इसमें नीचे न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होने स्टार्ट हुए। अब देखो इधर एरो देखो बेटा, इधर एरो कहाँ जा रही है, ऊपर जा रही है। इधर एरो कहाँ आ रही थी, नीचे आ रही है। इसका ये प्राइमर का 3 प्राइम 5 प्राइम एंड था, तो 5 यस प्राइम मैम। के साथ, इस 5 प्राइम के साथ यहाँ पे जो लगेगा, ये बेसिकली ये कौन सा लगेगा, 3 प्राइम एंड आएगा। अगेन यहाँ पे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स बनेंगे, बट यहाँ पे हमारा ये कट हो गया था बेटा। तो इस चीज को याद रखो कि इस स्ट्रैंड को हम कहते हैं कंटिन्यूस स्ट्रैंड। कौन सा वाला पेरेंट स्ट्रैंड, 3 प्राइम 5 प्राइम जो एंड होता है ये वाला, और इसे बोलते कंटिन्यूस। हैं डिसकंटिन्यूस स्ट्रैंड। कौन सा वाला डिसकंटिन्यूस होता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। 5 to 3। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों पेरेंट स्ट्रैंड्स का डिफरेंस कर रहे हैं हम लोग। जो पहला वाला स्ट्रैंड है उसमें कोई कटिंग नहीं हो रही है, रेप्लिकेशन कॉन्टिन्यूसली चल रहा है, दैट इज व्हाई दिस स्ट्रैंड इज नोन एज कंटिन्यूस। कंटिन्यूस स्ट्रैंड। एंड जो दूसरा वाला है वो पार्ट्स में बन रहा है, फ्रैगमेंट्स में बन रहा है। एंड ये जो अलग अलग पीसेस हैं, अलग अलग फ्रैगमेंट्स हैं, इन्हें हम बोलते हैं ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। व्हाट आर दीज फ्रैगमेंट्स कॉल्ड, ओकाजाकी। ओकाजाकी। तो ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स कौन से पेरेंट स्ट्रैंड में मिलते हैं, 3 प्राइम टू डिसकंटिन्यूस। 5 प्राइम या 5 प्राइम टू 3 प्राइम? 5 prime to 3। यस, डिसकंटिन्यूस स्ट्रैंड में। तो अगर हम ये देखें कि यहाँ से कट हुआ तो एक फ्रैगमेंट ये आ गया, एक फ्रैगमेंट ये आ गया, यहाँ से फिर कट होएगा बेटा, ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे, एक ही नीचे वाला फ्रैगमेंट अलग हो जाएगा। सो ऑल मैम दीज इधर फ्रैगमेंट्स की साइड नहीं होता, जैसे पिछले वाले स्ट्रैंड में कंटिन्यूस में, जैसे कि आप बोला था कि बना सकते हैं, इधर भी एक हो सकता है, इधर 3 प्राइम की तरफ इधर। ये नीचे यहाँ पे, यहाँ तो 5 प्राइम एंड आ रहा है ना, तो नहीं ऊपर की मैम, तरफ दूसरी जाएंगे वाली ना। स्ट्रैंड कंटिन्यूस में। हाँ, इसमें तो नीचे आते जाएंगे, पूरा कंटिन्यूस स्ट्रैंड बनेगा, बट कटिंग नहीं हो रही है ना, इसमें नहीं मैम, कटिंग मैं नहीं बोल हो रही रही है। हूँ यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड ऐड नहीं हो सकते 3 प्राइम पे यहाँ पे। इस वाले पे मैम इधर की साइड भी तो हो सकते हैं मैम, वहाँ तो प्राइमर से अटैच हुए थे, तो यहाँ हाँ पे जी, अटैच होने के इधर लिए क्या? हाँ, ये तो जहाँ पे सारे रेड। यहाँ पे हम्म। बेटा, यहाँ पे नहीं होते हैं क्योंकि ये वाली साइड पे प्राइमर अटैच हो गया है ऑलरेडी, तो यहाँ से अटैच होने शुरू हो जाते हैं। यहाँ दो दो बॉन्ड बनेंगे, एक तो ये बॉन्ड आरएनए के साथ ये बन ही रहा है यहाँ पे, एक इसी, ये वाले सब जो बॉन्ड बना रहे हैं ये इसके साथ बना ही रहे हैं डीएनए के साथ। इनका प्राइमर से कोई कनेक्शन नहीं है बाद वाले न्यूक्लियोटाइड्स का, सिर्फ पहले वाला न्यूक्लियोटाइड आरएनए से बाइंड कर रहा है, बाकी सारे न्यूक्लियोटाइड्स जो है ये इसी के साथ बॉन्ड बना रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तभी हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनता जा रहा है, क्योंकि बाद में तो ये हट जाएगा, प्राइमर का यहाँ से कोई काम है ही नहीं, वो हट जाएगा यहाँ से। तो आपके बस ये बचे रह जाएंगे जो आपके न्यूक्लियोटाइड्स ओल्ड स्ट्रैंड के साथ। अब दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो गए बेटा, बोथ द स्ट्रैंड्स हैव सेपरेटेड। ये तो चल ही रहा था ग्रोथ विदाउट इंटरप्शन, यहाँ पे पीसेस बन गए हैं। एक पीस यहाँ दिखा दिया मैंने, फर्स्ट पीस, सेकंड पीस, थर्ड पीस, बेसिकली 3 पीसेस आई ट्राई टू शो यू। यहाँ भी बेटा कॉन्टिन्यूस है, विदाउट इंटरप्शन है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूस स्ट्रैंड। और जो पीसेस मिले, व्हाट आर दे कॉल्ड एज, दिस इज द वर्ड वी हैव जस्ट यूज्ड, ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स, OKAZAKI, ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। अब हमारे दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो गए हैं, अब हमें इसकी जरूरत नहीं है प्राइमर की, क्योंकि हमारा नया स्ट्रैंड ऑलरेडी बन गया। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा, लास्ट स्टेप ये रिमूवल ऑफ प्राइमर। Again, that same enzyme is going to come into role. What is the name of the enzyme?
DNA polymerase. पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा? इट विल रिमूव द प्राइमर, लेकिन अब जब प्राइमर हटेगा तो ये स्पेस खाली हो जाएगी, गैप आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये तो स्ट्रैंड कॉन्टिन्यूस ऑलरेडी बन चुके हैं, लेकिन जहां जहां से प्राइमर लास्ट में हटेगा सेपरेटेड स्ट्रैंड्स में, तो वहां पे क्या आ जाएगा? आपका गैप आ जाएगा। उस गैप को फिल करने के लिए आपका लाइगेज अब एक्शन में आएगा। विच एंजाइम नाउ? Ligase. Ligase. Ligase will attach the new DNA nucleotides to that places जहां पे अब गैप्स आ गए। गैप्स किसकी वजह से आए होंगे गैप्स? मैम क्योंकि प्राइमर हट गया। एग्जैक्टली, जहां जहां प्राइमर हट गया आपका वहां पे गैप आ गया, एंड नाउ दिस एंजाइम लाइगेज विल कम इनटू सीन। इट विल अटैच। लाइगेज का काम बाइंडिंग होता है, हमने जब एंजाइम्स पढ़े थे तो हमने पढ़ा था। सो लाइगेज क्या करेगा बेटा? यहाँ पे अटैच कर देगा। ये देखिए बहुत रफ बनाया है, ये प्राइमर रिमूव हो गया। ओके, डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड हो गया ये यहाँ पे। बेटा ये देखो, जो पुराना स्ट्रैंड था ये वाला, ये जल्दी बनेगा, ये वाला। क्यों जल्दी बनेगा? बॉन्डिंग विदाउट इंटरप्शन बन रहा है ये, इसमें कोई इंटरप्शन नहीं है, ये विदाउट इंटरप्शन वन बाय वन न्यूक्लियोटाइड्स कीप ऑन एडिंग और ये बन गया। इस स्ट्रैंड क्योंकि पहले बनता है, इसको हम बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। तो दो नाम हो गए इस स्ट्रैंड के। फर्स्ट नाम क्या था इसका? कंटिन्यूअस एंड लीडिंग। कंटिन्यूअस बिकॉज इट इज फॉर्म्ड विदाउट इंटरप्शन, एंड लीडिंग स्ट्रैंड बिकॉज जो नया स्ट्रैंड बन रहे हैं दोनों तरफ, उसमें ये वाला पहले बने। आई एम टॉकिंग अबाउट द न्यू strands which are formed, the new complementary strands अगर हम बात कर रहे हैं दोनों में, तो ये बाद में जल्दी प्राइमर हटता ही है तो फिर डिसकंटिन्यूअस को कंटिन्यूअस कर सकते हैं ना। प्राइमर हट लेकिन जाएगा। टाइम लगता है। जहां जहां देखो, यहाँ पे सिर्फ एक प्राइमर है, इमीडिएटली एक न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे आएगा, ये स्ट्रैंड कंप्लीट हो गया। यहाँ पे आपके पीसेस में है तो आपके 2-3 प्राइमर्स हैं, 3 प्राइमर्स होंगे, हर स्ट्रैंड का अपना प्राइमर होगा। तो जितने भी स्ट्रैंड्स हैं ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट, सबके प्राइमर हटेंगे, सबकी जगह डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स आएंगे, तो सब बाइंडिंग का प्रोसेस चलेगा अलग अलग फ्रैगमेंट्स में। तो ये बनेगा, लेकिन थोड़ा इसके बाद बनेगा, इसलिए इस स्ट्रैंड को हम बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। व्हाट इज द नेम फॉर दिस? लैगिंग। यस, सो वी हैव टू रिमेम्बर लीडिंग स्ट्रैंड कौन सा होगा? 3 प्राइम टू 5 प्राइम या 5 प्राइम टू 3 प्राइम? 3 to 5। एंड आपका ये लैगिंग स्ट्रैंड हो गया, क्योंकि ये बाद में बनता है तो ये आपका लैगिंग स्ट्रैंड हो गया। ये तो ट्रांसक्रिप्शन की साइड स्टार्ट हो गई है। फर्स्ट देखो, 5 लीडिंग स्ट्रैंड आपका ये बन गया, ये जरूर याद रखना है। Discontinuous formed later, that strand is known as your lagging strand. Lagging strand pieces में बनता है, और कौन से पेरेंट स्ट्रैंड पे बनता है? 5 प्राइम 3 प्राइम पे, ये याद रखना। और इसमें लीडिंग स्ट्रैंड किस पे बनेगा हमेशा? 3 to 3 5। प्राइम 5 प्राइम। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, अगर ये फिगर दिमाग में रहेगा तो रटने की जरूरत नहीं है। The leading strand is formed on which parent if they ask you? It is 3 prime to 5 prime strand. And the lagging strand is formed on which parent? It is in 5 prime to 3 prime. We have different names also. We've got continuous strands, we've got discontinuous strands, and lagging strands and leading strands. एक बार heading कर लो फटाफट सारे steps की बस. Then if you want you can leave. पहला step बताइए. पहला एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, Second, मोनोफॉस्फेट से ट्राई हो जाते हैं, फिर ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। बेटा एंजाइम्स को बोलते जाओ साथ में, जो इम्पोर्टेंट चीज है। हम पहले रिकॉग्निशन होता है साइट का, फिर हेलिकेस आता है, फिर टेंशन रिलीज करने के लिए टोपोइसोमरेज आता है, फिर स्टेबलाइज करने के लिए स्टेबलाइजिंग एंजाइम, फिर थर्ड स्टेप होता है फॉर्मेशन ऑफ प्राइमर। यस, थर्ड स्टेप के बाद हाँ, फिर उसमें न्यूक्लियोटाइड्स ऐड हो जाते हैं प्राइमर के 3 प्राइम में। ओके, प्रोसेस तो आपको समझ में आ गया, बट हेडिंग से आपको याद करनी पड़ेगी। प्राइमर अटैचमेंट 4th स्टेप है आपका ना, ठीक है? प्राइमर अटैचमेंट आपका 4th स्टेप होएगा बेटा। मैम थर्ड फॉर्मेशन प्राइमर फॉर्मेशन होएगा। ओके, चलिए प्राइमर फॉर्मेशन समझा दिया आपने।
फोर्थ स्टेप भी कर दिया, प्राइमर ऐड हो गया आपका। आगे चलिए, स्टेप 5 क्या था? क्या प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है आपका? डीएनए रेप्लिकेशन Replicate. स्टार्ट हो गया। यस, उसके बाद क्या होगा नेक्स्ट स्टेप? Removal of a primer. सेपरेशन ऑफ स्ट्रैंड्स, separation of strands, then removal of primer. Okay, first your strands will get separated. तब ये सेपरेशन में आप ये वाली ओकाजाकी फ्रैगमेंट वाला पार्ट मेंशन करोगे। जब ये सेपरेट होंगे तो ये कॉन्टिन्यूस दिखेगा और ये आपका पार्ट्स में है ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। एंड देन फिर आप क्या बताओगे नेक्स्ट वाला बेटा? लास्ट वाला आपका आपने बता ही दिया, रिमूवल ऑफ प्राइमर। विच एंजाइम इज इन्वॉल्व? DNA polymerase. DNA polymerase. So at the end, we can give names for the new nucleotide sequences which are formed, the new DNA strands. One DNA strand which is formed is